Hi Uday, how are you? It's great. I'm good. Okay. Uday is one of my students from the college and one of my very recent students. So let's ask him only. Uday, Hmm. आप आपने engineering कब की? Which year pass out you are? So I'm 2018 pass out from computer science department. Okay, 2018, pretty recent. Okay. Yeah, it's pretty So recent. today I think Uday will basically today I will like to talk to Uday about data analysis, then e-learning, then hackathons. Uday का जो profile मैंने देखा, it is very impressive. Like Uday will today will be telling us a lot about how he acquired such a good profile. Means Uday का profile इतना अच्छा है कि मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इसने 2018 में ही पास करके within 2 years he has such a impressive profile. So let's start. Okay, उदय आपके लिए मेरा पहला क्वेश्चन Hmm. रहेगा. What do you understand by data analysis basically, since आपका mainly field of working यही रहा है, so can you tell me? So basically my working field is software engineer plus data analysis. So I think data analysis basically nothing but आप data का क्या sense बना पाते हो. So I'm also right now doing a diploma in statistics also to like deepen my learning because I like in college we always approach this field as a computer science. So coding में approach करते हैं कि code कैसे करना है, packages कौन से Python R ये सब कर रहे हैं. But when you dig deeper in it, so you understand the nuances in data. So when because I've worked with power trading corporation project का हमारा था एक, so we were like powers की bidding होती है, like share market की bidding होती है. So we were doing time series modeling and prediction of pricing क्या रहेगा. उसके लिए हम अपने clients को bids दे देते हैं कि ये bid होनी चाहिए, predicted bids. So इसमें जब आप करते हो डेटा आपके पास आता है when you like every 5 minutes every day a bid goes. So to understand the complexity of data और कैसी distribution है उसको देख के समझना. So I think data analysis ये है. बाकी how do you use the tools that depends on you because I've seen people computer science graduates also work on this and statistics majors also work on this. People with statistics background also and math background also work on this. So it is not restricted to a background. In recent advancement in computer science काफी पैकेजेस आ गए काफी आसान हो गया मतलब हम कोडर्स के लिए स्टैट्स में वर्क करना तो आई थिंक एक बूम आया मशीन लर्निंग करके जो कि काफी वायरल हुआ among engineers but I think this is a core mathematical and statistical field और इसके लिए वो बेसिक्स होना बहुत जरूरी है Okay, तो so वर्किंग मेरे वर्किंग यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है या छोटा सा. Means I think basically इस ये जो initiative है, it is basically for younger students. So can you tell या me if a first year or a second year student want to start understanding data analysis या want to become a data analyst, उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए? उनको like where they should start? So I think like I'm a huge fan of Andrew Ng. So like that's where I started. His lectures and on machine learning is amazing. So I think he has a very like balanced mix of mathematics and like coding. So you can start with him. Like in Coursera there is a course, but वहाँ पे YouTube में you have free lectures. Second thing, I'm a very big fan of MIT Open Courseware. So MIT has like open source lectures, and there are many great professors and my favorite is Professor Simi. He teaches algos. So you can pick up such professors, you can watch their lectures, and you can understand the field. And my approach is always start working on it as soon as you have a basic idea of it. Like some people like पूरा समझ लेते हैं फिर करते हैं. So I think computer science में you can never grasp the whole field. So I think as soon as you get a gist of it कि क्या करना, you start doing it. मतलब there is Kaggle, there is so many platforms where you can just have a data set and play with it. So I think you can just get a hands on and आपको पता चल जाएगा मजा आ रहा है आपको डेटा से खेलने में because some people get overwhelmed by seeing lakhs of columns and lakhs of rows but some people have like fun making sense of it so I Okay. think that should be the starting point. ओके आपने जैसे कैगल का नाम लिया मैंने देखा है Hmm. मैंने खुद देखा है कैगल में ज्यादातर जो Hmm. डेटा होते हैं दे आर नॉट बेसिकली नॉट हमारी देश से नहीं होते हम तो अगर लेट्स से कोई इंडियनाइज Hmm. डेटा पे काम करना चाहता है तो वेयर दे शुड लाइक प्रोसीड वेयर दे शुड गो. So Indian government has made a lot of data sets open source, like vehicles का data set है. There is a lot of CCTV footage online. Then again, a lot of information about land, like PTC I'm telling or power trading. So power trading का data available है. There is a lot of data which government had made online. Smart India hackathons होती हैं, उसमें हमें काफी data provide किया जाता है, and the government has a dedicated portal for this data sets. But ओके the thing is, problem यहाँ पे होती है कि you don't have a guided effort because this is data set. Like if you go online and if you get a Kaggle data set,
you have a lot of solutions built on that. So for a starter, it can provide you like a guiding mechanism. But yeah, if as you grow, like go into like an intermediate and you become an expert, and you want to do something for a country or something on country's data, you can definitely pick up on that. But starting field, I will always recommend to pick on a famous data set, so that you can study the like first you can do whatever you want to play with it, and then you can see the existing projects and people research on it, so understand what's the like difference and where you stand on it. So I think Okay. that can be a really good measuring level for them. Okay, मैं basically अपनी audience को बताना चाहूँगी. I'll link all the resources that Uday mentioned in the description box. Okay. Okay. Yeah, I will share it with you. Yes. Thank you so much. That will be really helpful. So, Uday, अच्छा एक बात बताओ. Like, how did you get interested in data analysis? Like, how did you get interested in data? मतलब आपको कैसे अच्छा लगा कि मुझे इस पे कुछ काम करना चाहिए? So basically, when I started doing hackathons and all, again I was exploring different technologies, and the time I joined college, I think Android was the booming technology at that time. Yes. Everybody was doing Android workshops and everything, and that kind of like that kind of really, tinkled my interest. So I was exploring new technologies, and at that time, I think machine like Andrew Ng's course came in, and so basically. My first hackathon DTU. So I wanted to build a system, what we call like this is a problem called speech aparaxia. So I wanted to build a solution for that. So I even I had a meeting with an END specialist also on that. So we had quite a conversation, and the solution required NLP. So and so my approach to learning is not through like मैं technology सीखता हूँ फिर काम करता हूँ. I was like कि ये चीज मुझे करनी है तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी. So that was the backward approach. So वहाँ पे मैंने फिर मुझे NLP चाहिए था तो I dig into ML. So ML से मैंने start किया तो वो मुझे भी पसंद आया. So that is the route I took into machine learning and data science. Basically उदय मतलब हम ये कह सकते हैं basically आपने self study करके ही ML data analysis and ये सब सीखा है, right? Yeah, I think most like I didn't take any offline classes or something, and college में I think we didn't have any dedicated data का course in नहीं है. So there was no question for that. But yeah, I studied myself, and then in the third, fourth year, I organized a lot of workshops. I've given lectures on machine learning in Facebook developer circles, and YouTube में हमने काफी summer workshops करवाई हैं where I taught in a batch. So that is how things got rolling. Okay. So my next question will be, जैसे for example आजकल जो engineers है, young engineers है, and colleges में भी आजकल जैसे आपने बताया ना, जैसे आपने जब college join किया था, Android का boom था. अभी I think hackathon का बहुत boom है. Like for the past 2 years since Smart India hackathon started, like by Indian government, बहुत ज़्यादा hackathon का boom है. Means every week some or other hackathon is happening somewhere. Okay. So can you first tell me what is exactly a hackathon and what skills somebody needs to participate? Basically, hackathon is a combination of two words, hack and thon, hack and marathon. So hack is people get confused about hacking, like it's not hacking. Hack is basically Indian jugaad. जब Indian जुगाड़ बोलते हैं. So hacking is basically a problem is there, you have to hack a solution for it. And marathon means मतलब it's a 24 36 hour continuous event. So like I've been privileged to go to like Facebook invited me to attend their Facebook hackathon in San Jose, and I've been to University of Waterloo in Canada. They invited me, like I got a sponsored trip, both of them, and to represent in a hackathon internationally. So I've been like I've won Angel Hack in Delhi, and I've like many Tata hackathons and so many others. I've like participated in many. So इतनी मैं participate करूँ तो कुछ तो जीत ही जाऊँगा. That was the case. I must say, today I went with the chat just by instinct. I think I chose the perfect person to ask about hackathon. मतलब मुझे जानना था. मतलब wow, good instinct. Thank you. Anyways, yeah, okay. Actually, first, congratulations on all the hackathons you attended nationally and internationally. Yeah. Okay, so you were telling me about the skills. Yeah, so basically, I don't restrict a person from running hackathon from skills. Like I have attended hackathons with my brother who is who's studying CA. I've attended hackathons with my friends who are doctors, and I've attended hackathons with front-end developers, every kind of person. So hackathon is basically you go in to solve a problem. That's the only tagline for it. It doesn't matter what your skill, your expertise in. You can always contribute to a project because I'm a big fan of interdisciplinary learning. Like I had bio in my 11th, 12th.
and I've always been interested. So मतलब किसी के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड बेसिकली हैकाथॉन का एक ही मोटो होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी, और दैट इज वही मैं एक मोटो लेके अपने साथ जाता हूँ. So that is what which have like that is the thing which have made me successful in this hackathons and everything. So basically मैंने जब स्टार्ट किया था तो पहली दो हैकाथॉन्स में तो हम like 24 आवर्स का इवेंट होता है, तो वहाँ पे खाना वाना फ्री मिलता सब, तो हम दिन में आते थे, रात को खाना वाना खा के सुबह जब पिचिंग होती थी तो हम निकल जाते थे, बिकॉज फर्स्ट सेकंड ईयर कहते कुछ बनाना बनता ही नहीं था हमसे. एंड आई थिंक बीवीपी के सीनियर्स हैं, दे आर लॉट एक्टिव इन हैकाथॉन, एंड आई थिंक मेरे कॉलेज के सीनियर्स ने आई थिंक वेरी ग्रेट कल्चर. आई थिंक इवन मैं जब इंटरनेशनल हैकाथॉन अटेंड करने गया था, सो आई वाज इन अ फ्लाइट, एंड मेरी जो फेसबुक की फ्लाइट थी वो आई थिंक फेसबुक वाली थी, नहीं जर्मन फ्लाइट थी, दैट वाज कनेक्टिंग इन जर्मनी. And I met 5 of my college people there. They were so someone was going for MIT hack and someone was going for Toronto. हाँ, मैं भी सुपरवाइजर बन के आई थिंक 2018 या 2018 आई थिंक 2018 में इंदौर गई थी इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2. हाँ, आई थिंक मैंने भी एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की टीम मेंटर करी थी IGTTO से, एंड दे आल्सो वॉन इन देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो मतलब वही है कि आई एम सेइंग द वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ अ सीनियर्स, सो वो बहुत इंकरेजिंग था स्टार्टिंग में. तो पहले 5 हैकाथॉन में तो हम कुछ कर नहीं पाए, तो भी मतलब हम निकल जाते थे, कुछ होता ही नहीं था हमसे. बट आफ्टर दैट स्टार्टिंग मतलब कन्वर्टिंग, थोड़ा जब एक्सपीरियंस हुआ तो समझ में आया कि क्या करना है, तो टेक्नोलॉजी हमने सीखी, तो उसके बाद चीजें होने स्टार्ट हुई, तो फिर देन आई गॉट एडिक्टेड टू इट. लाइक आई वाज ऑलवेज, मतलब मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे, बिकॉज आई यूज्ड टू गो टू हैकाथॉन 36 आवर्स विदाउट स्लीप, एंड मतलब वो कैफीन पे रहना, और तो वो बहुत ही मतलब इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग टू डू. So वो थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता था. Not a healthy thing if you do it regularly. अगर आप एक के बाद करते रहो, it's not a healthy thing. हाँ, so it was usually over weekends. So मतलब मैं एक महीने में एक दो हैकाथॉन्स अटेंड करता ही था, चाहे कुछ होता नहीं था. So that was a really good, because I love problem solving as a developer. मतलब I think my main motto is I think that's the main skill, problem solving. Problem solving. वही आपको बड़ी कंपनीज पूछती हैं, जो पजल्स होती हैं, जो एल्गोस होती हैं, that is why they ask. उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए, वो दिमाग चाहिए, वो अप्रोच चाहिए. आई थिंक वही, बाकी टेक्नोलॉजी स्टैक स्किल लैंग्वेज दैट इज ऑल सेकेंडरी. सो एज अ हैकाथॉन एंथुसियास्ट, आपके मतलब फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? पाइथन, आई लव पाइथन बिकॉज डेवलपर कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ही जबरदस्त है उसमें. वी हैव पैकेजेस फॉर ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू डू. सो यू वांट टू बिल्ड ग्राफ्स, यू वांट टू इम्प्लीमेंट अ क्यूइंग एल्गोरिथम, यू वांट टू इम्प्लीमेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, आपको फ्रंट एंड में कुछ करना है, तो एवरीथिंग आई थिंक पाइथन हैज सपोर्ट फॉर एवरीथिंग, बैक एंड से लेके API से लेके, यू कैन डू एनीथिंग इन दैट. सो दैट आई थिंक दैट गिव्स अ लॉट ऑफ पावर. एंड लर्निंग का ज्यादा नहीं है, तो आई थिंक दैट गेट्स यू ऑन बोर्ड क्विकली. लाइक अगर कुछ नया सीख रहे हो आप, नई आपकी लाइब्रेरी आप पढ़ रहे हो, तो आई थिंक पाइथन में यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट इट क्विकली, क्विकर देन अदर पीपल. एंड सेम विद जावास्क्रिप्ट, सम पीपल आर more comfortable with JavaScript. I'm more leaning toward Python. ओके, सो जैसे आपने कहा आपके पास 12th में बेसिकली बायो था, ओके, बायो एंड मैथ्स. आई थिंक मतलब यू नो मेरे पास भी यही सेम कॉम्बिनेशन था, बायो एंड मैथ्स. ओके, सो मैं ये मतलब जानना चाहती हूँ आपसे, आपने कब लाइक व्हेन डिड यू स्टार्ट एक्चुअली यू नो वर्किंग ऑन प्रोग्राम्स एंड लर्निंग टू प्रोग्राम एंड ऑल? So I think एक कॉलेज में आके करा, बिकॉज स्कूल में आई डोंट थिंक मतलब मेरा ऐसा प्लान था कि आई वुड वांट टू बी अ प्रोग्रामर. आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, cosmology and astrophysics, and I was following Stephen Hawking that time. And उसके बाद थोड़ा था 12th के बाद I was also like I tried for Air Force also. So SSB के लिए मैं I went to give my SSB also, but obviously आइस का प्रॉब्लम था. So बहुत से ये ट्राई करी, मतलब मैं कुछ ना कुछ ऐसे फालतू चीजें ट्राई करता रहता हूँ. So but again then prior, it depends. You know, nahi, depends nahi. You know, people who keep trying, na, they actually reach somewhere, or somewhere. Okay. Yeah. So that is the thing. So basically, when I got like I was trying to get, and there's only one physical science course in IISc, and that is too difficult to get in. Obviously, मतलब आपको advanced में भी you have to be a top 300 ranker through that. तो obviously वो तो नहीं मिला. तो when I got into engineering college, so choice obviously computer science में scope है, ये ले लो, सब है. So I took that, and so for the first 1 year I was a little lost, but second year में तो मुझे समझ में आया कि जो मेरा I combined my interest with my profession basically, कि मुझे लगा कि मुझे कुछ चीजें I love solving problem, like मैं बचपन में भी चीजें खोल के सही करना मुझे पसंद था.
So when I got programming as a tool, so I thought कि ये भी एक बढ़िया चीज है, तो इससे भी मैं काफी चीजें बना सकता हूँ, and to build things is my main interest, so why not build things with software. So वो मैंने जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो अगेन आई फाइंड माय लाइक वो इक्विप नहीं था, उसके बाद मुझे अपना करियर को मैंने वो मर्ज कर दिया विद Okay, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. so data analyst की job होती कैसी है? Like, you know, what to expect if somebody goes into data as a data analyst, if someone. So data analysis in a starting में I think data analysis आपको distinguish मतलब distinct नहीं मिलेगी. But in big companies like Adobe, Google, and Facebook, so they usually have data scientist positions which are vastly experienced. They usually offer to PhDs and 5+ years of experience. Starting में आपको data scientist या data analyst की job नहीं मिलती. Mostly आपको basically आप एक software engineer होते हो या डेवलपर होते हो, और आप बेसिकली वर्किंग साइमल्टेनियसली, लाइक आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई आल्सो वर्क ऑन बैक एंड, डेटा के साथ भी काम करता हूँ, मतलब व्हाटएवर आई गेट. सो बट ये कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, तो आई मतलब Adobe गिव्स यू द लाइक द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज योर प्रोजेक्ट. सो मेरे सेल्फ इनिशिएटिव्स जो होते हैं वो डेटा के अराउंड होते हैं, तो आई गेट द यू नो अपॉर्चुनिटी टू वर्क मोर ऑन डेटा. इवन हमारा Adobe का इंटरनल ML ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सो उसमें भी मैं एनरोल्ड हूँ. So मैं उसमें भी I contribute to that, and I'm in a community of machine learning developers. So that is how you approve about it. Startups में you get position data analyst, starting में associate data scientist you get. So उसमें purely आपको data scientist वाला काम machine learning algorithm पे काम करना होता है. Because a lot of startups are coming up with AI and ML integrated into them. So that is a different approach you can take as a career. Either you can go to a startup where you have a dedicated profile of data scientist. We can work for a couple of years, gain some experience to transition into a big company. Or you can get into a big company as a developer. You can work on data science projects. Drive your initiatives. They have a lot of, because big companies always give you a lot of opportunity to implement your skills. So उससे आप काफी मतलब आप काम कर सकते हो, और अगर आपका उसमें काम है तो धीरे-धीरे आपको वो उसी डिपार्टमेंट शिफ्ट कर देंगे. फिर आफ्टर व्हेन यू गेट इनफ एक्सपीरियंस आप इंटरनली स्विच कर सकते हो data scientist. Okay. So these are two approaches. Okay. So like, how did you get selected in Adobe? Like, first, congratulations. It's like great, great achievement, I think. One of the most, जिसे कहते हैं ना, dream companies for students who want to get into. So how did you get into Adobe? So it's kind of a funny story. Like one of my batchmate was in Adobe. So she referred me. I was looking for a job change, and first I was scheduled an interview. So but फिर वो हुआ नहीं, डेट निकल गई. So मतलब मैं टेस्ट दिया था, तो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ बट डेट हुई नहीं. फिर couple of weeks after I got a mail कि 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू आ जाओ, and I was not prepared because I was working in a startup at that time. So ठीक है, ऑफिस में गया सुबह, और नोएडा में था ऑफिस भी और अडोबी का ऑफिस भी. सो स्कूटी से then I went to the office, gave interviews, और फिर मैं सेकंड के बाद रिजेक्ट हो गया था. So reject होके I came back to my office, and then after half an hour बाद कॉल आती है कि आप वो गलती हो गई, ऑफिस आ जाओ. So then I went back again. Back again. I gave 2 more rounds. Then after that a day, consecutive week में 2 और online round हुए, and then I got selected. So थोड़ा मतलब ups and downs funny story. Very nice. Means it was there in your fortune basically. Yeah. You can say fortune or whatever. हाँ, तो fortune और हाँ, वैसे हम engineers fortune में believe नहीं करते, but still let's say. Okay. Yeah. Very nice. Okay. So like I see you do a lot of volunteering work. Okay. So can you tell me, like, from college level until now, अभी तक आप लोग आपने मतलब volunteering कहाँ किया है, and किस initiative में volunteering किया है? So volunteering, I have been like in college time, I have volunteered in the Blind Association in Lodi Road. So we used to like work with blind people to help them prepare for exams and help them read, help them solve papers and things like that. थोड़ी हिंदी में problem होती थी. Then in E-Vidya Loka, which has been a major gig in volunteering, so that was with Adobe. So in Adobe they came, so there was a session. A lot of people in Adobe do this. So basically we teach a class like 8, which is to 6, 7, 8. We can select a class and we have to teach them 2 hours a week. So there's a 2 class of 1 hour, and I got enrolled in that. So I got a school in Jharkhand, Devipura district, and it was an all-girls school. And I got 8th class. I was teaching them science.
So that was a great experience actually, because मैं सोचा कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, गांव के हैं, because everybody was farmers daughter. So मैंने कहा वो कितना समझ लेंगे या क्या होगा. But when I started teaching them, I was like absolutely shocked. Their power of grasping, उनकी जो curiosity थी, और वो इतनी जबरदस्त थी. I think no student I have seen in my life can match their curiosity, because there were some students जो front row में बैठते थे. So a lot of girls were shy, तो इतना interact नहीं करती थी. But there were 5-6 girls who were like totally मतलब बिंदास थी. और वो मतलब I used to like keep them like half an hour. मैं उनको पढ़ाता था, half an hour बोलता था कि चलो तुम जो पूछना है पूछो. So they used to become questions like कि पानी हम बाहर रखते हैं तो सूख भी जाता है, और बारिश लाइटनिंग जब होती है तो इतनी तेज आवाज क्यों आती है, और सूरज यहाँ से ऐसे ऐसे क्यों निकलता है, और ठंड क्यों होती है. So they were used to question, because I used to keep it an open round. So we had a lot of fun, and they used to love, like उस समय चंद्रयान का मिशन चल रहा था. So they used to love watching videos of rocket, मतलब space missions, because मुझे स्पेस का शौक है, तो मैं उनको भी वो दिखाता था. तो मून लैंडिंग उनको मैंने दिखाई. So they were like totally amazed कि चांद पे कोई गया है. और फिर they were very big fan of my travels. So वो मुझसे हमेशा मेरी ट्रैवल्स की फोटो मांगते थे. मैं किस ऑफिस में काम करता हूँ उसकी फोटोज मांगते थे, मेरे घर की फोटो मांगते थे कि भाई आप क्या करते हो. सर बोलते थे कि आपकी लाइफ कैसे, तो वो मुझे देख कैसे बोलते थे कि मैंने आज दिन तुम्हें क्या बनना है, तो हमें भी इंजीनियर बनना है. बिकॉज उनको इतना कुछ था नहीं, उनको कि आपकी तरह हमें करना है जो आप कर रहे हो, ऐसी लाइफ चाहिए, ऐसा घूमना है, Very good. दुनिया मतलब देखनी है. I'm really impressed. You know, this is today basically मेरे को मतलब उदय को contact करने का मेरा main basically the hook was this. I mean, it is great. I mean, देखो जैसे आपने शुरू में कहा ना कि जैसे ये बच्चे मतलब ज्यादातर मतलब रूरल एरियाज से हैं, इनका पता नहीं कि मैं इनको पढ़ाऊंगा क्या समझ में आएगा. बट यू नो एक्चुअली ना मतलब बच्चों को अंडर एस्टिमेट करना, मीन एवरीबडी हैज द कैपेबिलिटी टू यू नो अंडरस्टैंड एंड लर्न एंड बी एजुकेटेड. बट एक्चुअली ना मेन जैसे हमारे देश में मेन प्रॉब्लम है अपॉर्चुनिटी का. इन सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता. ये जो मैं आपसे बेसिकली आई वांट टू टॉक अबाउट वॉलंटियरिंग ओनली. मीन दिस इज अ ग्रेट थिंग यू हैव डन. मींस आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. मैंने एज अ टीचर out of everything you have done, I'm really the most like proud of this part of yours. Wow, they're very nice. I will like to hear more. So और क्या होता था वहाँ पे, और जैसे साइंस में मतलब कैसा था, मतलब did they pass all their exams in your subject? हाँ मतलब we were not their only teacher. वहाँ पे उनके टीचर होते थे जो पेपर लेते थे. So हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज हमारा कोर्स हिंदी में था और झारखंड बोर्ड का पेपर था, तो मुझे बुक्स पहले पढ़नी पड़ती थी. एंड आई टू कीप गूगल ट्रांसलेट बगल में. मुझे आई यूज्ड टू मतलब हिंदी इंग्लिश हमको पता है ना, लाइटनिंग और ऐसे कोशिकाएं सेल सबको पता है, बट कोशिकाएं बोलना थोड़ा मुश्किल होता था. तो वो थोड़ी स्ट्रगल थी. विद प्रतिबिंबित रे, रिफ्लेक्टेड रे. So this kind of words were a little tough for me, but it was really fun. Like I used to really thoroughly enjoy that, and they used to have fun. Like मतलब जब वीडियो ऑन होती थी तो जो गुड मॉर्निंग होता था उनका इतना एंथुसियास्टिक होता था कि गुड मॉर्निंग, बिकॉज़ दे यूज्ड टू लव साइंस क्लास. मतलब मुझे बस बोलते थे, आप सबको बोलते हैं पता नहीं, बट उदय डोंट यू थिंक ये फीलिंग बड़ी अच्छी थी, मतलब जस्ट व्हेन स्टूडेंट्स यूज्ड टू रिस्पोंड टू यू एंड उनको वो लोग सीख रहे हैं, वो लोग और इंक्विजिटिव होकर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डोंट यू थिंक कितना अच्छा प्राउड फील होता है ना ये? Exactly, that's the thing. Like that's one of the most beautiful feeling you can have. Like like you're making an impact in someone else's life. And वो क्वेश्चंस जैसे हम यूजुअली करते हैं, लाइक आई हैव सीन पेरेंट्स अराउंड मी कि जब कोई बच्चा कोई डिफिकल्ट चीज पूछता है, कॉम्प्लिकेटेड, तो हम बोलते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा. आई थिंक दिस इज द वर्स्ट थिंग वी कैन डू टू अ किड. एग्जैक्टली. सो अ किड हैज अ बडिंग क्यूरियोसिटी, और किड मतलब बच्चे की क्यूरियोसिटी कभी भी हमें दबानी नहीं चाहिए. सो वो मुझसे बहुत चीजें पूछते थे जो मतलब पास करोगे ना, मतलब हाउ डू यू नो व्हेन. Exactly. And Richard Feynman said that you can explain everything, even quantum mechanics, to a kid if you understand yourself well enough. Yes, I totally agree. So that was the thing which encouraged me. So उनको जो भी पूछते थे क्या कितना कॉम्प्लिकेटेड होता था, तो बिकॉज वो खेती का काफी क्वेश्चन पूछते थे. तो खेती के मैं जब पढ़ के आता था कि वो एग्रीकल्चर में पानी इरिगेशन मेथड ये यूज होता है, ये ऐसा, और ये टूल्स यूज होते हैं, और ये टूल्स कैसे बने, ये सब. सो मैं पढ़ता था तो उनको समझाता था. तो मतलब वो स्ट्रगल कभी करता था कि एक क्लास में आप एक ही चीज समझा पाते हो उनको. तो मैं बट मेरा था कि चलो कोर्स तो ये कर ही लेंगे, तो किताबें हैं पास तो कर ही लेंगे. मेरा वो फोकस वो नहीं था. मेरा फोकस था बेसिकली कि जितना टाइम मुझे मिलता है मैं उनको एक क्यूरियोसिटी जनरेट कर दूं, ताकि उन पे ये रहे कि वो आगे जाके क्वेश्चंस, वो सवाल पूछना सीख जाए. इसके आंसर तो इंसान ढूंढ ही लेता है, वो सवाल पूछने की आदत अगर बन जाएगा इंसान की, तो वही मेरा मेन मोटिव था इस टाइम में जो भी उनका मैंने स्पेंड किया.
वाओ, तो इवन उसके बाद क्या था कि एक महीना बचा था एंड आई वाज टेकिंग द क्लास, और मुझे पता नहीं था कि 9th में आ चुके हैं. सो दे वर लाइक पास होकर 9th में आ चुके थे, एंड आफ्टर 1 मंथ आई गॉट अ कॉल कि आप आपको रीसाइन करते हैं, बट तो लॉकडाउन हो गया, कहते मुझे दूसरी क्लास मिली नहीं. तो मैंने कहा कि मेरी क्लास चल रही है, तो उन्होंने कहा तो पास हो चुके हैं, आप अपनी क्लास क्यों ले रहे हो? तो मैंने कहा यार वो आते हैं क्लास में, मैं ले लेता हूँ, मतलब मुझे तो मतलब वो भी आ जाते हैं क्लास में, तो उनको उनको भी मजा आता है, मुझे भी आता. तो हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया कि वो उनके पेपर हो गए, वो पास हो गए. हमने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे कभी मेरा एजेंडा रहा ही नहीं. मैंने उसको कभी उनके पेपर से डिस्कस नहीं करा, पेपर के बारे में नहीं पूछा, कभी कोर्स के बारे में नहीं पूछा. वी हैड अ लाइक फ्री क्लास, मतलब फ्री स्टाइल लर्निंग थी वो, उनके लिए भी और मेरे लिए. ओके उदय, डोंट यू थिंक ये जो आपने बताया वॉलंटियरिंग, जैसे आपने, जैसे देखो, जैसे रूरल हम्म. बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको हिंदी में पढ़ाने के लिए आप खुद जैसे इरिगेशन के बारे में, साइंस के बारे में इतना पढ़ते थे, फिर इतना ट्रांसलेट हम्म. करके इतना एफर्ट लेके पढ़ाते थे, एंड उसके बाद जब वो रिस्पॉन्ड करते थे आपको बहुत अच्छा लगता था. सो डोंट हम्म. यू थिंक ये जैसे मतलब शहरों में जो कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं या दूसरे जो कॉलेजेस होते हैं, डोंट यू थिंक वॉलंटियरिंग शुड बी अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, सो दैट ये जो शहर गांव का जो कनेक्ट है, जैसे जैसे मतलब जैसे हमारे शहर वाले जो बच्चे वो गांव के जैसे बच्चों से अगर जब इंटरेक्ट करेंगे तो डोंट यू थिंक मैंने बहुत एक एकता जिसे कहते हैं ना, लाइक पीपल विल कम टुगेदर, डोंट यू थिंक शुड बी. So yeah, so basically even evening the opportunity is the basic motto I think every government should have. और यही मतलब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना टाइम भी और अपना पैसा भी. लाइक हम अगर बोलता हूँ बजट भी अगर गवर्नमेंट बना रही है, सो द किड्स आर द आई थिंक द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री. बिकॉज आपका पैसा, आपका जीडीपी गिरेगी, बढ़ जाएगी, आपका कुछ और प्रॉब्लम आएगी वो सॉल्व हो जाएगी, बट इफ यू इन्वेस्ट इन किड्स, मतलब अगर मैंने 50 बच्चे की क्लास से पढ़ाया है, उसमें से 2 बच्चे भी अगर साइंटिस्ट निकल जाते हैं, उसमें से एक बच्चा अगर पता कैंसर का क्योर निकाल ले, तो शी कैन चेंज द वर्ल्ड. सो यहाँ पे आपको ये पोटेंशियल हर बच्चे में देखना चाहिए. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वी लाइक वॉलंटियरिंग कंपलसरी होनी चाहिए, बाहर होती है. एंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली बाहर नॉट पता है तभी जैसे एमएस के लिए जब अप्लाई करते हैं ना, जो ये जो लेटर ऑफ पर्पस लिखा जाता है, उसमें पता है लेटर ऑफ पर्पस में व्हाट वॉलंटियरिंग वर्क यू हैव डन और लाइक नॉन प्रॉफिट के साथ आपने क्या काम किया है, ये मेंशन करना मैंडेटरी होता है. मुझे याद है मेरे पास इतने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आते थे फॉर अप्रूविंग. सो मेरे को मतलब जैसे उनका ऐसे ही लिखा होता है, मैं उनको कहती थी तुम्हारे वॉलंटियरिंग वर्क का पैराग्राफ कहाँ है, कह रहे मैम हमने तो किया ही नहीं, ये कैसे लिखे, खुद अब बना के लिखना पड़ेगा. समझ रहे हो? मीन्स दे एक्चुअली कम्युनिटी सर्विस के वाले पार्ट में वेस्टर्न एजुकेशन एक्चुअली गिव एम्फेसिस ऑन. ओके सो या एक्चुअली एज यंगस्टर आई थिंक हम जैसे लोगों में टाइम बहुत होता है, स्टूडेंट्स के पास टाइम बहुत है. So we have a lot of energy and time. We can definitely invest on these things, and we can like put in. अगर हम proper channel करें तो हम we can make a lot of impact. Other than the institutions and the government and the schools, I think अगर हर youth भी like हम ACM में hour of code करते थे, तो हम सामने वाले जो हमारे कॉलेज के सामने एक गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ हम जाके मतलब दिसंबर में 2 घंटे की कंप्यूटर क्लास लेते थे, उनको कोडिंग सिखाते थे. 5th 6th से बच्चे कंप्यूटर लैब में आते थे, तो काफी मस्ती होती थी वहां पर भी. तो वो चीजें हैं, मतलब इफ लाइक वॉलंटियरिंग, बिकॉज नॉट ओनली इट विल मेक यू अ गुड इंजीनियर और विल गेट अ गुड good कॉलेज, human being, इट विल मेक यू अ बेटर पर्सन. एग्जैक्टली, better person, in मतलब fact आपको it will make you more patriot, I think. patriot or not, nationalism is a different concept I think for me. Okay, For me as a person, I think कि जितना मैंने उनको सिखाया उससे ज्यादा मुझे सीखने को मिला. हाँ you learn a lot of life lessons, मतलब yes at their level, with their resources, the yes struggle they are doing, the yes effort they are putting, जो उनका खुशी है, मतलब उनको कोई मतलब इतने कम रिसोर्सेज में they are happy, and उनको जो कुछ सीखने को मिल रहा है, एक चीज अगर वो नहीं सीख रहे हैं तो उनका जो एंथुसियाज्म है, आई थिंक वो एक लर्निंग का जो उनका एक पैटर्न है, आई थिंक वो मैंने सीखा. अगर मैं उस पैटर्न पे अगर मैं वो चीज अगर रेप्लिकेट कर पाया अपनी लाइफ में, तो आई थिंक आई विल गो लॉन्गर विद इन दिस. सो आई थिंक ये चीजें जो है वो हम वी मिस ऑन दिस. यस मतलब मेरा बेसिकली मेरा मतलब था बेटर ह्यूमन बीइंग. तुम्हें पता है जैसे उदय, मेरे को भी जैसे आउट ऑफ ऑल दिस लाइक बीइंग अ फैकल्टी, बीइंग अ टीचर, मुझे पता है बेस्ट पार्ट क्या पसंद है, टीचिंग, द इंटरेक्शन पार्ट विद द यंगर माइंड्स. मुझे ये वाला पार्ट बहुत ही पसंद है. मींस पता है क्यों पसंद है? मुझे उनसे बहुत सीखने को मिलता है. आई लर्न अ लॉट. सो एग्जैक्टली, when the mentor school gig was communicated to me, तो मुझे स्टार्टिंग से ही मतलब कॉलेज से आई एम डूइंग लेक्चर्स एंड वर्कशॉप्स मैं करवा ही रहा हूँ. सो मुझे शौक, मुझे भी आई थिंक आई लव लाइक आई लव टीचिंग, आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. सो उस टाइम पे भी मुझे बोला गया था कि ओके, बिकॉज दिस इज स्टार्टअप एंड दे मेंटरिंग कॉलेज ग्रेजुएट्स, रिसेंट ग्रेजुएट्स, टू यू नो टू गेट अ कोडिंग जॉब.
So I'm not an instructor. I don't teach them coding. I just mentor them. I motivate them. I tell them what to do and how to handle things and everything. And there are people who have 8 years of experience in commerce field, and they are going to switch in coding. So they are like I just have 2 years of experience. I don't have much experience, and I'm mentoring people with greater experience than me. So उसमें भी उन्होंने कहा था कि we because of the startup we can't like compensate you much and everything. But I think I was like no problem because I was there for the experience, because मुझे लगा कि इतना मैं उनको सिखाऊंगा उससे तो मुझे भी सीखने को मिलेगा. I'm interacting with people from different states, from Telangana, from Andhra Pradesh, from one is from Assam and one is from like different states. तो उनका कल्चर सीखना, उनका माइंडसेट, वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो आई थिंक रीडिंग पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग बुक्स. आई थिंक वो एक लाइफ एक्सपीरियंस बेटर रहता है हमारे इसके लिए, ग्रोथ के लिए. I'm sure. Means I'm really impressed on this community service part. अच्छा, आपका जैसे involvement Newton School के साथ भी है, as I saw in your profile. So can you tell me about Newton School and what do you do there? So that is a startup which basically mentors students, recent graduates, and even graduates, recent graduates, even final year college students to get a coding job. Okay. So it's basically it's not exactly a non-profit. So it's a basically it's a ad hoc basis kind of thing. So basically they first train you, then help you land a job, and they have a business model afterwards. Like after you land a job, they like expect you to compensate for their services or the services they provide for you. So that's the thing. So it's not exactly non-profit, but anyway, I get to mentor students, so that is the fun part. So this is also a volunteering job for you, or like you do it for like? It's a part-time job kind of. It's a part-time gig. Part-time gig. Yeah. Okay. That's really good. Okay. So what else? जैसे for example आपने कहा कि जैसे आप वो झारखंड के जो स्कूल के बच्चे थे वो आपके travel pics भी देखना चाहते हैं. So are you a travel enthusiast? I want to be like जब I went to Facebook, so उस टाइम हमारे फाइनल ईयर के पेपर्स थे. Because I went in 2018 March end, नहीं April end. So मैंने नैना मैम से रिक्वेस्ट करके एक प्रैक्टिकल शिफ्ट करवाया था इवनिंग वालों के साथ, बिकॉज मेरी डेट क्लैश कर रही थी. So that was my first meet, it was the first time I sat on a plane in my life, and that's good for achievement, in fact. Yeah, that was all sponsored by Facebook. Yes, वही तो तभी तो मैंने कहा अपने पैसे नहीं खर्च किए, मतलब on somebody's money. I mean, you got an opportunity like that. Yeah. So that was the thing. So obviously, again, as I love interacting with people, going to a different country, exploring a different culture is again like people hate layovers. I love layovers because मेरा होता है कि लंबा layover होना चाहिए. Because I want to explore, like बाहर तो नहीं जा सकते, जैसे लंदन मेरा first layover था, तो बाहर तो नहीं गया, but Heathrow was a big airport, so I explored a lot. I walked around, saw people, and so this was a great experience for me. So obviously, I like traveling. I love traveling. अभी तो सब क्या कोविड ने बंद कर रखा है. कोई नहीं, हो जाएगा. Let's be. I was planning that way. Yeah, I was planning to take my parents now to even get them their first maiden international trip. उनको थोड़ा explore करवाना. So that is, I think it opens up. It opens you up. It opens you up a lot. Same here. I'm also a travel enthusiast. तभी मैंने ये question पूछा. I love to travel. Means. Exactly. Yeah, because the thing is that when you are in a place like 25 years I spent in Delhi. Okay, so basically you're set in your ways. इंडिया में हम एक चीजें एक साथ हम डिग्री करते हैं, हम ये करते हैं, हम जॉब पे सेटल होते हैं, तो एक चीजें करने का तरीका सेट होता है आपका. आप उस थॉट से आगे बढ़ ही नहीं पाते हो कि इसको करने का तरीका कुछ अलग भी होता होगा. व्हेन यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस यू सी लाइक हाउ दे ईट. इवन हम खाने में लाइक हमें नमक वाला खाना चाहिए, हमें नमकीन मतलब दाल रोटी सब्जी ऐसा चीजें चाहिए. When you go to US and you go to London, you taste their food. मतलब ठीक है, it's very pale, मतलब मुझे पसंद नहीं आया, but you see their eating habits and it's a different experience altogether. Like उनका खाना कैसे खाते हैं वो लोग, शाम को supper में they take light things and morning they take heavy breakfast. So these are small things which I think which affects you, which opens up your mind, and I think which which expands your horizon to absorb more and more of different cultures. Yes, I mean this is the main thing. You should open your mind. Means just because I am doing something, यही सही है, यही सही तरीका है. No, ये thinking सही नहीं है. Means obviously आप जब ज़्यादा लोगों से interact करोगे ना, you will understand there are so many ways to live a life. Okay, and लोग मतलब जितना मतलब उनको opportunity मिलता है वो सब करते हैं.
ओके, वेरी नाइस उदय, मतलब मेरे को बड़े इंसाइट्स मिल रहे हैं. अच्छा, जैसे मैं यस डेफिनेटली मींस मतलब आई रियली आई एम लर्निंग अ लॉट. इनफैक्ट मैं भी ये इनिशिएटिव ज्वाइन करना चाहूंगी, ई विद्या लोका वाला. मींस आई वुड आल्सो लाइक. I will send you the link. I think the classes are closed. I think they are planning to do something like that कि वो मतलब लाइक एक गांव में एक घर में फोन पहुंचा रहे हैं और उसके बाद आई थिंक वो 2-3 बच्चे इकट्ठा करके क्लासेस लेना कुछ इनिशिएटिव कर रहे हैं. आई थिंक व्हाट्सएप में कुछ बात हो रही थी, तो आई विल फॉलो इट अप. अगर कुछ Yeah, होता yeah, है तो definitely. You डेफिनेटली forward it to me. I आई विल mean, I बाउंस would be आई विल बाउंस interested. इट अराउंड. ओके ओके. अच्छा, एग्जैक्टली. एक बात बताओ, जैसे आपका मतलब मुझे देखो, आपका मुझे प्रोफाइल मतलब पूरा देख के लगा इट्स अ वेरी बैलेंस्ड प्रोफाइल. लाइक यू हैव बीन अ डेटा एनालिस्ट, यू हैव बीन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू हैव लाइक पार्टिसिपेटेड इन सो मेनी प्रेस्टिजियस हैकाथॉन्स, फिर उसके बाद आपने ये वॉलंटियरिंग वर्क भी किया है, मतलब कम्युनिटी सर्विस एंड ऑल. सो ओवरऑल मुझे लगता है कि एज अ इंजीनियर, एज अ प्रोफेशनल, आपका जो प्रोफाइल है बहुत ही बैलेंस सा है. सो जैसे आपने कहा कि जैसे फर्स्ट ईयर में आप भी थोड़ा सा क्लूलेस से थे, जैसे होते हैं बच्चे होते हैं. सो एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आप सजेस्ट क्या करोगी, लाइक हाउ टू स्टार्ट, मतलब हैविंग अ पर्सपेक्टिव मींस कैसे, मतलब कैसे उसको ये कंफ्यूजन दूर हो कि मेरे को एक्चुअली में करना क्या है, या व्हाट आई लाइक और डोंट लाइक. थोड़ा इसके लिए फिलोसॉफिकल होना पड़ेगा बिकॉज क्या होना लॉट पड़ेगा? ऑफ पीपल फिलोसॉफिकल बिकॉज लॉट फिलोसॉफिकल, ऑफ अच्छा. पीपल so a lot of people ask me this question कि भैया ये कैसे सीखें, एमएल कैसे सीखें, या ऐसे कैसे अडोबे में कैसे जाएं. I never give them like advice. Like I can share my experience, but I हाँ. never tell them कि ये करो, because obviously जो मेरे लिए काम करे तुम्हारे लिए नहीं करेगा. Every person is a different universe. मतलब हर कॉन्शियस का अपना एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, अपना एक अलग लाइफ पैटर्न होता है और अपना एक अलग बैकग्राउंड होता है किसी के लिए. बिकॉज आई वॉज फ्लेक्सिबल, लाइक कॉलेज के बाद आई हैड लाइक पैकेजेस, मतलब प्लेसमेंट ऑफर्स थे, बट मैंने छोड़ के सब मैं रिसर्च पे लग गया. इट वाज लेस मनी बट आई लर्नड अ लॉट. ठीक है, बट सम पीपल हैव टू सपोर्ट देयर फैमिलीज एंड दे नीड द मनी. सो आई नेवर बाउंस अराउंड कि मैंने ये करा अभी. बट हाँ, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस. और मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने ये किया था कि आई थिंक फर्स्ट सेकंड ईयर आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर एवरीथिंग. मतलब I have also sell policies like life insurance policy because my dad is CSCA. So मैंने उनके साथ IIT में मैंने पेपर देके मैंने पॉलिसीज ही बेची है, लाइफ इंश्योरेंस ओह पॉलिसीज ही बेची वाओ, है. सो वाओ. मैंने ये भी करा है. सो आई थिंक आई लाइक मैं डैड के साथ जाके मैंने कंपनीज भी, मतलब मैंने अकाउंटेंट वाला थोड़ा बहुत काम भी किया. सो आई थिंक आई वाज एट दिस एज यू आर लर्नर. मतलब आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो यू गो आउट, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. इंजीनियरिंग से अपना को रिस्ट्रिक्ट मत करो. जस्ट बिकॉज आप इंजीनियर डजंट मीन कि आप फिजिक्स नहीं पढ़ोगे. अगर हाँ. आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ो. आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ोगे, आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ो. आई थिंक पीपल बिकॉज ये बहुत एक दो तरह के माइंडसेट होते हैं. एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है. सो दिस इज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट इफ आई लाइक आई कैन शेयर, अगर मैं शेयर कर सकता हूँ हाँ हाँ, तो थोड़ा. डेफिनेटली. हाँ. सो बेसिकली दिस इज एन एक्सपेरिमेंट. सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ टू किड्स. 5 लोगों का दो बच्चों का ग्रुप है. 10 बच्चे हैं. सो जो ग्रुप 1 है उनको एक मैथ प्रॉब्लम दी जाती है इजी. सेकंड ग्रुप को दी जाती है, दोनों सॉल्व कर लेते हैं. तो ग्रुप 1 को बोला जाता है कि यार यू गाइस आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत स्मार्ट हो, तो आपने सॉल्व कर लिया. ग्रुप 2 को बोला जाता है कि यू गाइस आर वेरी हार्ड वर्किंग, आप बहुत मेहनत करते हो, तो आपने सॉल्व कर लिया. सो उसके बाद दोनों ग्रुप को हार्ड प्रॉब्लम दी जाती है. दोनों कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता. फिर दोनों ग्रुप को बोला जाता है कि एक काम करो, आप ना होमवर्क में क्वेश्चन ले जाओ और करके लाना. तो ग्रुप 1 तो, और उसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक इजी क्वेश्चन, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो ग्रुप 1 वाले इजी क्वेश्चन उठाते हैं और ग्रुप 2 में सारे बच्चे डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाते हैं. इसका रीजन ये था कि ग्रुप 1 वालों को फिक्स माइंडसेट दे देगा कि नहीं, आप इंटेलिजेंट हो, आपका आईक्यू इतना है, तो आपने कर लिया. तो उन्होंने अपना लेवल फिक्स कर दिया. लाइक एजुकेशन सिस्टम में बच्चों का, हमारे कॉलेज में भी होता है और स्कूल में भी रहता है कि ये बच्चा तो बहुत स्मार्ट है, मतलब गूगल में इसका होगा, हमारा कहाँ होगा, ये तो कोडिंग में बहुत तगड़ा है, इसके 90% आता है तो इसी का होगा. तो वो फिक्स माइंडसेट होता है. आप आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो. ऐसा नहीं, मतलब वो कुछ अलग बंदा है, उसके 4 सर नहीं है या 2 पैर 8 पैर नहीं है. ही इज आल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक यू. और दूसरे वाले ग्रुप को क्या था, ग्रोथ माइंडसेट दिया गया था कि उनको बोला कि आप हार्डवर्क करके यहाँ तक पहुंचे हो, तो दे बिलीव कि मैं हार्डवर्क करके आगे तक भी पहुंच सकता हूँ. तो दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट वी नीड टू हैव. सो बिकॉज बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. 12th के बाद 12th तक आप बबल में रहते हो. यहाँ पे आके आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो. आपने कॉलेज, आपने स्कूल में टॉपर थे, बट यहाँ पर कोई और टॉपर होता है. तो पीपल यूजुअली लाइक कुछ लोग, बहुत लोग IITs का, ऑलमोस्ट सभी IITs का ट्राई करते हैं. तो काफी, मतलब अदर देन IITs काफी लोग डिसअपॉइंटेड भी होते हैं. उनकी मोरल बहुत हिली भी होती है. 18 साल के बच्चे को क्या नॉलेज होगी उनको. मुझे तो जब तक मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई, आई डिडंट नो कि बीटेक जैसा कॉलेज एग्जिस्ट करता है. 10th तक तो होता था कि मैं BSc फिजिक्स ऑनर्स करूंगा. तो
तो अब kid is exploring a new space, so I think उसको एक्सप्लोर करना चाहिए. He should not be afraid of failures. मतलब बिल्कुल जाओ, क्योंकि 4 साल में आपको कमाना तो कुछ है नहीं, आपको एक्सप्लोर करना है. तो हर चीज ट्राई करो जिसमें हाथ लगता है, जिसमें मजा आता है, वो चीज आपको ऑब्वियसली आप करने लग जाओगे. हैकाथॉन मैंने करी 1 साल तक. मेरा हैकाथॉन में किसी में भी हम पिच ही नहीं कर पाते थे, बट दैट डजंट मीन आई गिव अप ऑन हैकाथॉन्स, बिकॉज मुझे मजा आ रहा था. तो मैंने जब वो 1 साल 2 साल लगे हैकाथॉन में मुझे अच्छा बनने में, बट वो फिर अच्छा बना तो फिर अच्छा ही बन गया ना. So I think that's the growth mindset we need to have. Like, If keep we on trying. That's what you're keep on trying. trying, and I think because वो age ही है, मतलब this is the age we can explore. Like even now, like I'm 25 years now, so parents are like, okay, you are earning well and everything, तो settle होने का plan करो. My friends are like, okay, अब तो तू सही कमा रहा है, तो अब क्या चाहिए. मैं कहा नहीं, अभी मेरे पास, अभी मैं एक्सप्लोर करूंगा. अभी मैं भी स्टार्टअप कर लूं, मैं भी मास्टर्स के लिए बाहर निकल जाऊं, मैं भी कुछ और कर लूं, मैं बिजनेस खोल लूं. इट डजंट मैटर, बिकॉज दिस इज द टाइम आई कैन डू समथिंग. If I want to do something else, I will do something else. So I think we are very critical of like being कि हाँ बीटेक से है तो इंजीनियरिंग करे तो कोडिंग ही करेगा या करेगा. So we restrict ourselves. So हाँ वो exactly, मतलब इंजीनियर भी लोग इसलिए करते हैं, मतलब they restrict themselves कि हाँ इंजीनियरिंग करेंगे, फिर एक अच्छी सी हाई पेइंग जॉब करेंगे, उसके बाद फिर जैसे कहते हैं इंडियन सोसाइटीज में सेटल हो जाएंगे एंड ऑल. बट ये कोई नहीं होता कि हैव अ लाइक जिसे कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज आर ओपन, लाइक ये ट्राई करो, तुम्हें जो मन कर रहा है करो. ये चीज, ये जो जिसे कहते हैं ना फ्रीडम, हम ये फ्रीडम नहीं सिखाते. क्रिएटिव लिबर्टी जो होती है, मतलब वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत लैक करती है. आई थिंक नया एजुकेशन सिस्टम मैंने देखा है, तो दैट आई थिंक होपफुली दैट विल ब्रिंग द चेंज व्हिच वी रिक्वायर. मतलब बच्चों में, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो. मतलब मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मैं आज के दिन सब कुछ छोड़ के जाके मैं गाड़ी बेचना स्टार्ट कर सकता हूँ. दैट डजंट मैटर. मतलब हम लोग इतना जजमेंट से अपने आप को स्टिग्मेटाइज कर देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते. Because like I'm a big fan, like I was watching lectures, so my brother is also doing math major. ठीक है, so हम लोग डिस्कस करते हैं, we discuss algorithms. So मेरा सपना है, मतलब I always think कि I love the traveling salesman problem. So I always think कि यार मैं कभी ऐसा हो कि मैं कभी सॉल्व कर दूं इसको, और मतलब पॉलिनोमियल टाइम में, और if you solve it in पॉलिनोमियल टाइम you will win a Nobel Prize. Yes, obviously, definitely. So हाँ, so मेरा भाई बोलता है कि यार ये क्या सोच रहा है, मतलब नोबेल प्राइज थोड़ी शक्ल देखी अपनी. तो I'm like, first step in achieving something is believing you can do it, right? तो मतलब सोचने में क्या जा रहा है, ट्राई एफर्ट तो मारो. ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बट that will lead you somewhere, right? At least. So I think we people as like students बहुत, मतलब I think we मतलब बहुत दबे हुए होते हैं. मतलब काफी स्टूडेंट जो स्पेशली जो स्मॉल सिटीज से आते हैं, इवन सिटी जो बिग सिटीज वाले लोगों को फिर भी कॉन्फिडेंस होता है, दे हैव एक्सप्लोर्ड लाइफ, तो उनका एक होता है. और आई थिंक यंग स्टूडेंट्स में एक चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. बिकॉज आजकल के क्या सोसाइटी में क्या हो गया कि आपको बर्गर चाहिए, आप ऑर्डर करके फटाक से आधे घंटे में बर्गर आता था. in our days, like I'm trying to sound old या something like that. मतलब हमें होता है कि हमारा जब सैटरडे को पीटीएम होगी तो पापा लेके जाएंगे, तो पीटीएम के बाद अगर अच्छा टीचर ने बोला तो मैकडी से बर्गर मिलेगा. सो वो एक पेशेंस होता था, वो एक होता है ना कि आपको अंडरस्टैंडिंग, आप वैल्यू करते हो चीज की. तो अभी क्या होता है कि पीपल ग्रेजुएट एंड दे लाइक कि ग्रेजुएट करके 3 महीने में स्ट्रेस में आ गए. क्यों? क्योंकि यार मेरी अमेज़न में जॉब नहीं लगी, मुझे 3-4 लाख का पैकेज ही मिल रहा है. तो मेहनत तो कर, 1 साल मेहनत करेगा, 1.5 साल करेगा तो पहुंचेगा ना वहां पे. ठीक है, यू हैव नॉट अ स्टार्टअप, आप आईटी से नहीं निकले, कोई बात नहीं. अडोबी में मैं भी अडोबी डायरेक्ट नहीं गया. इट टुक मी 8 to 9 months. पता है उदय, मेरा ये जो हम बात कर रहे हैं ना, मेरा इस इनिशिएटिव का बेसिकली मेन पर्पस इज दिस ओनली. जैसे आपने कहा ना कि जैसे हमारा मतलब पूरा करिकुलम, एजुकेशन करिकुलम बड़ा ही रेस्ट्रिक्ट कर देता है, हमें क्रिएटिवली रेस्ट्रिक्ट कर देता है. तो आपको पता है मेरा पूरा इनिशिएटिव का मोटिव ही ये है कि जैसे कॉलेजेस में मैं देखती हूँ कि ये जो देखो, जैसे आपसे कोई जूनियर अभी बात करेगा तो आप उसको ये सब बताओगे, राइट? तो वो, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको डायरेक्ट एडवाइस दे रहे हो, बट आपकी बातों से वो कुछ तो पिक करेगा ना कि हाँ, मतलब दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ थिंकिंग. मतलब हम ऐसे भी सोच सकते हैं, मतलब लाइफ को हम ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, हम अपने करियर को ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं. तो बेसिकली मतलब मेरे इस इंटरेक्शन मतलब सेशंस का बेसिकली मोटिव यही है कि व्हाट यू आर सेइंग ना, Uday, you're saying such deep things because ये जो creative restrictions, then ये जो हम अपने आप को close कर लेते कि हाँ, हम एक level पे हम 90% ले आए, means हमारी life यहीं पे restrict होगी, हम बस that's the level I have achieved.
मींस देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन अचीव. जैसे आपने नोबेल प्राइज वाली बात की, मतलब आई फेल्ट रियली, मतलब आई मीन आई वाज रियली हैप्पी टू हियर कि हाँ आप कहीं शुरू नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो करोगे कैसे, राइट? एग्जैक्टली, तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप. सो वहीं पर हमारी, so they are problem. I think काफी चीजें हैं like जो I think there are a lot of things which we have to consider because जो टेक्नोलॉजी का बूम आया है, इंटरेक्शन चेंज हो गया है लोगों का. Like the generation which is coming right now, like my younger brother and the kind of people who are born in 2000s, I think they have a different approach to life. उनका एक इंटरेक्शन अलग रहा है, like सोशल मीडिया पे रहा है और सब है, तो उनका एक थॉट प्रोसेस डिफरेंट है. सो आई थिंक टेक्नोलॉजी, दुनिया इतनी तेज चेंज हो रही है बट हमारा सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है. सिस्टम हमारा वही 60s-70s वाला है. सो आई थिंक एज टीचर्स, आई थिंक आई वाज प्रिविलेज्ड टू गेट सम अमेजिंग टीचर्स इन कॉलेजेस. मतलब कॉलेज में भी काफी टीचर्स थे, मतलब कॉलेज का अटेंडेंस का इतना सीन रहता था, बट दे वर टीचर्स हु एनकरेज मी बिकॉज़ आई वाज डूइंग गुड वर्क. मैं ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में था, एसीएम में मैंने चेयरपर्सन भी रहा और मैंने रिस्पांसिबिलिटीज ली. तो दे इनकरेज मी, मतलब दे बैक मी, दे सपोर्ट मी. एंड अगर वो सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता. मैं कोई क्लास में बैठ के आई वुड हैव लाइक, ठीक है मेरी परसेंटेज 5% ज्यादा होती, 10% ज्यादा होती, बट मैं ये सब चीजें सीख नहीं पाता. हाँ, उससे 5% ज्यादा लाके हो ही क्या जाता, कुछ डिफरेंट तो नहीं होता. So I think so teachers also are the biggest plays the biggest role in this. मतलब in school also I got great teachers जिन्होंने मुझे, मतलब 11th 12th में, like 12th में बच्चे होते जो पढ़ने का टाइम होता है, I was always out. मैं क्विज क्लब का भी हेड था. I was captain of my basketball team also and I was the head boy also. So मैं क्लास में बैठता नहीं था, हम ऑर्डर में बैठे, कभी बास्केटबॉल कोर्ट में बैठे, कभी कुछ करते. तो उससे मुझे इतना सीखने को मिला. एंड वो टीचर्स थे जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एनकरेज किया ये सब चीजें, इनिशिएटिव्स लेने में और मुझे ग्रूम करने में. तो आई थिंक मुझे वहीं से आदत डली. सो आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ टू गेट द टीचर. तो मेरा माइंडसेट डेवलप हुआ. सो जो मतलब कैंडी एटीट्यूड, मतलब मैं बचपन से ही मेरा रहता था कि कोई बच्चा ऐसे क्लास में आते हैं ना कि समवन वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, मैं सुनता भी नहीं था कि क्या किसने पार्टिसिपेट करना है, मेरा हाथ ऊपर होता था. मैंने नाच के अपनी बेइज्जती कराई, गा के मैंने बेइज्जती करवाई है. सो आई थिंक दैट वाज द एटीट्यूड व्हिच केम. I think because of teachers, the environment I got good friends, good circle. मतलब बेसिक करते थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता था. So मतलब ऐसा कुछ मतलब तो एक ग्रोथ कल्चर में मेरा I was lucky enough to have that. So I think most people में नहीं होता ये चीज. They come from a conservative environment, low environment. उनका मतलब उन सब शहर में आते हैं, काफी small cities के लोग, उनका सपना होता है कि वो जॉब करें, पैसे कमाएं, ये सब करें. तो उनको ये चीज इसी सोचने का मौका नहीं मिलता. Even like I am from a fairly middle class family, so like हमारा भी mindset ये है कि अगर if I have like, वो कहते हैं सेविंग करो, but सेविंग से कोई बंदा अमीर नहीं बनता या सक्सेसफुल नहीं बनता, इन्वेस्टमेंट से बनते हो. तो अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 1 लाख रुपए बैंक में पड़ा रहेगा, मिडिल क्लास फैमिली को अच्छा लगता है, हाँ पैसा पड़ा है, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट बच्चे ने बचा लिए, अब ये गाड़ी ले लेगा, घर ले लेगा, कुछ कर लेगा. बट वो अगर उस 10 लाख में से आप 2 लाख निकाल के अपने पर्सनल डेवलपमेंट में लगाओ, या अगर आपको बिजनेस करना है या आपने कोई कोर्स करना है उस पे लगाओ, दैट इज अ वे बिगर इन्वेस्टमेंट. तो बट वो मिडिल क्लास माइंडसेट थोड़ा. सो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि डू यू थिंक कि हमारे इंडियन एजुकेशन करिकुलम में या प्रोफेशनल डिग्रीज में देयर शुड बी अ रियली डेडिकेटेड पार्ट, जैसे मैंने वॉलंटियरिंग वाला पार्ट बोला, वैसे ही देयर शुड बी अ डेडिकेटेड पार्ट टू टीच अस अबाउट फाइनेंसेस, लाइक बी इट एनी करियर. बिकॉज देखो हर करियर का मेनली मोटिव लाइक इट गोज टू फाइनेंस ओनली. मींस आप क्यों प्रोफेशनल डिग्री लेते हो, आप बेसिकली वही सबका देखो, लोग माने या ना माने, इट इज ऑल अबाउट मनी. मींस पीपल आर अल्टीमेटली एमिंग टुवर्ड्स अर्निंग मोर मनी. So why more money? So that they can have a better lifestyle. वही जैसे आपने कहा ना, घर ले लेगा, गाड़ी ले लेगा. तो अल्टीमेटली कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं हम लोग. yes. So आपको लगता नहीं है कि ये जो मतलब फाइनेंशियल स्टडीज लाइक ये होना चाहिए हर प्रोफेशनल डिग्री में या हर डिग्री में? Exactly, it's very important. Like most of the people I work with, they can't do their own taxes. मैं भी नहीं मतलब ज्यादा कर पाता, तो मेरे भाई मैंने भी देखा ये, मतलब my father taught me how to file taxes and now I do it. And पता है मैंने अपने 2-3 colleagues को भी सिखाया कैसे टैक्स फाइल करते हैं. तो they were also like really thankful कि सिलिका good, like अब हमें किसी मतलब जैसे कहते हैं ना, we don't have to be dependent on a CA or some third person to file our own taxes. I think everything should be there. Like social studies will be also there. आपको मतलब economics knowledge होनी चाहिए. बेसिक नॉलेज है तो फर्स्ट ईयर में कवर करते हैं हम लोग. तो आई थिंक टेक्निकल से थोड़ा हटके भी हमें चीजें, मतलब लाइफ स्किल्स, तो वो होनी चाहिए.
आई थिंक, और वो आई थिंक न्यू के सिस्टम में दे आर ट्राइंग टू टारगेट दैट कि 12th तक बच्चे में हाँ एक लाइफ स्किल होनी चाहिए, ताकि वोकेशनल स्किल को यूज कर सके, और ये भी है कि अगर वो एजुकेशन ना भी कर पाए तो 12th के बाद कुछ ना कुछ लाइफ दैट बना इज ले। नीडेड, एक्चुअली दैट इज नीडेड, बिकॉज बहुत बार मतलब देखो ये हमें भी लगा है, हमने स्कूल में जो पढ़ा है वो कहीं काम ही नहीं आता, हमने कॉलेजेस में जो जैसे इवन आफ्टर बिकमिंग इंजीनियर हम किसी कंपनी में जाते हैं वो अलग से हमें ट्रेनिंग कराते हैं, क्यों ना, जो हमने पढ़ा पता नहीं क्यों पढ़ा, है ना, बट बहुत लोगों को लगता है कि हमने पढ़ा ही क्यों, हमने 45 सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, व्हाई हैव वी स्टडीड देम, लाइक एक दो सब्जेक्ट में भी कहीं पे काम आ गए, बट और सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली। हाँ, yes. Okay, so I see you have also been a research assistant in Triple IT. So, या how did you become a research assistant in Triple IT? आपने कैसे apply किया and कैसे join किया? लिंक्डइन में मैसेज किया था एक प्रोफेसर को, सो ही कॉल्ड मी अप एंड ही वाज लाइक एग्जाम खत्म होते आ जाना। आई वेंट टू हिम एंड he saw my profile and he's like okay, six मेरा 3 months का tenure था, that was 10 to 6 months. So उसके बाद they were trying like, because the project was big. Our project was funded by Melinda Gates Foundation, and we were working with ASHA workers, social health workers. We were working with the Ministry of like Delhi Ministry of Health. We were working with them, and we were basically focusing on women and child health. So उसके लिए हम apps वगैरह उनके workers के लिए बना रहे थे, systems बना रहे थे. So that was also a good experience. I was like, I used to travel to different NGOs in Chandigarh and study about I studied about women health, pregnancies, and how a child should be like, what the women need in the days of the pregnancy, what trimester wise vaccination, food, care, and then when the child is born कैसे उसको system पूरा, मतलब आशा workers take care of everything, उनकी डिलीवरी करवाना, उनको फिर उनको वैक्सीनेशन करवाना. So इस सब चीजों को वो यूजुअली मेंटेन डायरीज, मैनुअल वर्क होता है. So we were trying to automate it. NLP bot बना रहे थे to solve queries of the mothers, newborn mothers, because Wow. because I think the biggest issue यहाँ पे इस टाइम पे ये है कि child health is the, I think एक developing country के लिए सबसे बड़ा issue रहता है child health. हाँ हाँ. Because if your young generation is healthy, they will they will Become healthy eat, adults. they will eat less resources, वो कम डिपेंडेंट होंगे, they will become healthy, they will be more earning, and they will be better tax paying. So वो इकोनॉमी के लिए और कंट्री के लिए दोनों के लिए अच्छा होता है. हाँ. So I think that is Health the is main wealth, focus of. जैसे कहते हैं ना, health is wealth. So Obviously. उस पे भी काम किया, तो that was also a good experience. We used to interact with ASHA workers, on field जाते थे, तो cases देखते थे, बहुत complicated cases भी होते थे. तो that was a good experience for me also. Okay, that's great. Means the kind of जैसे आपने जैसे बताया, means basically you were trying to code or do like जैसे कहते हैं ना, you were trying to use technology to help the community. ये जो आपने. Yeah, exactly. So health मेरा starting से मेरा वो रहा है, एक point मेरा field of interest रहा है. So I always try to implement technology in health. Right now also I'm like I have a group. So we are 4 people, and 2 of them are doctors, and one of them is my childhood friend. We have been friends for almost 15 years now. So हम लोग एक project पे काम कर रहे हैं, and that we are doing it with Stanford Business School. So उनका एक प्रोग्राम है Embark करके. So we are trying to understand the landscape of mental health in our community. So that is what we are doing right now, and after that we are trying to do something like to revolutionize something, or to bring something to the market to help the people who are unable to maintain a good mental well-being. Well, Uday, I really hope, means more and more people hear you talk like this, like okay, and means ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि students actually आपकी तरह mindset develop करें. सच में, मतलब this is what you call a holistic approach to work or holistic approach to education. This is what a real education should be. कि आपको आप एक मतलब आपकी society की तरफ भी आपकी responsibilities है. People should realize that. Okay, that's, I mean, it was really enlightening talking to you, you know, Uday. And मैं दूसरों से ये बोलना चाहूंगी कि you know what made me talk to Uday was this, कि whatever he has done in his life, he has basically have a very structured profile which I saw on his Facebook page, and which I read, and I was like, wow, I need to talk to him. I mean, I need to ask these questions कि आप कैसे, you can be a technology enthusiast, you can do a very good job, you can have a very good profile, and plus you can give out to the community. So Uday, that will be it for it. Means मैंने काफी questions पूछ लिए. So
Thank you so much. Would you like to say some end words? So, like, you know, just a short conclusion कि आप like दूसरे अपने juniors को क्या बताना चाहोगे? Okay, so basically, for everyone who is listening, for my like juniors, I would like to say that you miss 100% of the shots you don't take. So life में हमेशा ये motto रखो कि try हर चीज करनी है और मतलब life को इतना भी seriously लेना चाहिए कि वो life difficult बन जाए. So I think मतलब you I've transitioned into this mindset little ago. और एक चीज मतलब I will try to मतलब I don't give advice to everyone कि आई डोंट थिंक मतलब जो मैंने बोला सबके लिए एप्लीकेबल होगा, बट एक चीज है जो आई थिंक सबके लिए एप्लीकेबल होगी, जिस तरह भगवत गीता कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि व्हेनेवर यू डू एफर्ट्स you get the results. You won't get it right now or 1 month, or it may take years. मतलब ऐसा कुछ होता है कि आपने एक बुक अभी पढ़ी हो और वो आपको 10 साल बाद काम आए, and that can change your life. But I think efforts करते रहो. And when you stop like relying on results, because results are based on environmental factors, तो बहुत कुछ होता है. Like अभी graduates हुए लोग 2020 में, they are struggling to get jobs, so they are in self doubt, and I think it should not be self doubt because pandemic चल रहा है. It is environmental conditions which are not which is making difficult for you to get a job. वो आपका self मतलब आपके काबिलियत पे वो चीज नहीं डिपेंडेंट है. मतलब आप अपना काम करते रहो, आपको आज नहीं मिलेगी, 6 महीने बाद मिलेगी, बट आपको अपने काबिलियत से वो चीज मिलेगी. सो आई थिंक कीप डूइंग एफर्ट्स, कीप एंजॉयिंग लाइफ और डिफरेंट चीजें ट्राई करते रहो. इट्स फन, मतलब मजा आता है. Very good. I mean, Uday, wow, means perfect. मतलब you know, you are like philosophy and science and community सब mix कर दिया. मतलब wow, मतलब such kind of thinking is like really rare. Anyways, all the best for your future endeavors. मतलब you know, मेरे blessings as a teacher तुम्हारे साथ है कि you know you achieve everything you want in your life. Thank you so much. Thank you for talking to me. Thank you, ma'am. Thank you so much. It was great talking to you also. Okay, bye then. Bye.